ठीक है, तो आजकल न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच चल रहा वो हैमिल्टन में, और बिल्कुल मतलब ग्रीन पिच पे न्यूजीलैंड ने इतना बड़ा स्कोर कर लिया, मतलब विलियमसन ने 200 बनाया। लेकिन अब तो मुश्किल होगा उनके उनके लिए तो 20 विकेट्स भी लेना, टेस्ट मैच भी जीतना, और उनके पास कोई स्पिनर खिलाया नहीं। गलत फैसला है टेस्ट मैच में स्पिनर नहीं लेना, बिल्कुल नहीं। हैदर डिपेंड करता है कि जो पिच हमने देखी है उसके अंदर जिसमें वो दिखा रहे थे कि अव्वल तो सब लोग यही कह रहे थे कि यार पिच किधर है, वो कह रहे हैं पिच कहाँ है। तो इस किस्म की जो पिचेस है ना, हम यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मतलब एयर बाय एयर खेल चुके हैं, so we got used to it about that. Secondly, the way Williamson played, like superb knock. I saw there couple of runs, like couple of boundaries. The way West Indies bowlers bowled badly on that surface, they didn't understand about the conditions. To be honest, they didn't understand about the way the way Kane Williamson playing. They didn't understand about the attitude, what kind of attitude they want. They saw the green pitch. They said bang bang. No, you need to you need to slow, little bit slow, like movement. You need to move it, because that's the difference between a different countries. If New Zealand plays against Pakistan, we have a good seamer. So you can see the difference between if we get a same pitches. Like if I remember the last time when Pakistan played in New Zealand, they got a same green pitch, and the Grand Home. He was a founder of that tour. He was the founder of that tour. He got 5 wickets in डेब्यू भी था। 51. Debut, exactly. He got 5 wickets in the 51. So that kind of a bowlers, they need to focus on these type of surfaces. तो अब्बास पे काफी प्रेशर होगा अपकमिंग सीरीज में। टू बी ऑनेस्ट हैदर, प्रेशर उस सूरत में आप ले सकते हैं जब आप समझते हैं कि हाँ यार प्रेशर लेना है। इफ यू डोंट थिंक दैट प्रेशर नहीं लेना, उस चीज को आप नॉर्मल रखें। आई थिंक वी डोंट नीड टू एनी प्रेशर, वी जस्ट नीड टू गो एंड प्ले अ नॉर्मल क्रिकेट, because you already in a pressure situation, and I pray for all our Pakistan players कि वो लोग जहाँ पर इस वक्त सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस सिचुएशन से निकलें, खैर खैरियत से निकलें, वापस 2-3 दिन के बाद 9 और 10 के बाद वो दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट करें, अपना फोकस करें। तो आई एम वेरी मच होपिंग कि जितने पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो भी न्यूजीलैंड के अंदर हैं, दे विल बी फाइट बैक एंड दे विल बी शो द वर्ल्ड दैट कि अगर ऐसे सिचुएशन आ जाती है तो उस सिचुएशन से किस तरह से निकलना है, किस तरह से फाइट बैक करना है अपनी परफॉर्मेंस के साथ। बिल्कुल। और ये बताना, हु इज द बेस्ट फर्स्ट क्लास प्लेयर और डोमेस्टिक प्लेयर इन पाकिस्तान हु नेवर प्लेड फॉर पाकिस्तान आपका टाइम में? मेरे टाइम में you can say there was the many players. It's one that is Naimur Rahman, I guess, is a player for Sui Northern. As a left-hander opener, he was a left-hander opener. He's very good. And Zulfikar Jan is the wicketkeeper from Peshawar. And one of the guy, Amir Sajjad from Lahore. Um, and from the Karachi, if I say from Karachi, like Tabish, and there were like few others. You can say like spinners. If I say about the spinners, we didn't get any spinners that much on that era. And one of the guys was Azam Khan, left-arm spinner. He used to play with me in a first-class cricket. He played against he played a few side matches. Unfortunately, didn't get much chance to perform in. जो PSL से पहले होता था ना, वो नेशनल 2020 जब बड़ा होता था, PSL से पहले उधर खेलता था कराची डॉल्फिन्स के लिए, मुझे याद है। Exactly. We used to play both because Shahid Afridi used to captain of the Karachi Dolphins, and he likes us. So you always prefer to put in our team. So कभी वो मैच खेलता, कभी मैं खेलता, तो just up and down चलता रहता था हम लोगों का। बाकी उसके अलावा अगर आप देखें तो there were like few others. एक नाम आता
सईद बिन नासिर, उसने कभी खेला नहीं Exactly, लेकिन Saeed काफी bin परफॉर्म Nasir. किया। Exactly, he performed very well, and I remember he was a part of a Pakistan team when the Pakistan struggled against Bangladesh in Multan, and then there was like an anchor inning from the Inzamamul Haq, and he finished the test match on the last wicket. So I remember I wish कि मैं सईद बिन नासिर को देख सकता पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलते, but he know the art how to score the runs, to be honest. But nowadays, like अगर आजकल मैं देखूं तो सऊद शकील very good, he's doing brilliant job. और उसके अलावा अगर मैं देखूं who knows about the conditions and जो उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट एज अ पेशेंस आ सकती है, तो अगर आप इनिंग्स बाय इनिंग्स आए तो जैसे उमर अमीन की मैं बात करूं, ही इज वेरी गुड, ही इज डूइंग लाइक स्कोर्ड 100 and 100 बैक टू बैक. एंड फ्रॉम द अदर साइड अगर साउदर्न पंजाब की मैं बात करूं, दे वर लाइक स्टिल स्ट्रगलिंग द पीपल्स ओवर देयर. लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो उमर बिन यूसुफ हैं, अभी रिसेंटली परफॉर्मिंग वेल इन अ सिन टीम, और मतलब स्टिल नीड टू गेट चांस. लाइक जाहिद महमूद राइट आर्म लेग स्पिनर हो गया, आबिश हो गया, साजिद खान हो गया, अबरार अहमद इज अ मिस्ट्री बॉलर, he is very difficult to understand. He used to play and he was selected in the Karachi Kings like 2 years ago. हाँ जी, हाँ ये देखा मुझे याद, Exactly, देखा हाँ, मैंने। he is very good, he is, to be honest, he is very good, but उसके अलावा as such तो नहीं आप कह सकते. हाँ, so and so तो players हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप किसी को नहीं कह सकते इस सिस्टम के अंदर. इसको हम कह रहे थे ना, प्लेयर्स जिन्हें काफी परफॉर्म किया लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं खेला। एक और भी आता है मेरा ज़हन में, सदाफ हुसैन, उसने तो उसके तो ऑलरेडी, नंबर्स तो हाँ फिनोमिनल है। एग्जैक्टली मैं नाम लिया था मैंने सदफ का ताबिश खान के अच्छा साथ. तो मैंने कहा था अच्छा कि अच्छा। दो पेसर्स ऐसे हैं जो इनको पाकिस्तान खेलना चाहिए था, जो दो नहीं खेल पाए, अभी तक वो परफॉर्म कर रहे हैं. दैट्स द बेस्ट पार्ट. लेकिन मैंने सुना उसकी बैटिंग और फील्डिंग में बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं होती, इसके लिए वो थोड़ा ओवरलुक होता। इस वो तो सदाफ की अब बात कर जाके रहा हूँ। हैदर वो अब जाके हुआ है ना, एटलीस्ट 1-2 साल में ऐसे हुआ है. ही इज परफॉर्मिंग सिंस 8 years. 8 साल पहले तो ऐसा नहीं होगा ना हाँ, वो. लेकिन वो कहते हैं उसकी फील्डिंग थोड़ी कमजोर है, बैटिंग भी उतना नहीं करता, मतलब सिर्फ बॉलिंग पे नहीं खिला सकते। अब बात ये है हैदर, अभी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो बात कर रहे हैं लास्ट 5 साल पहले की. हाँ जी, 5 हाँ जी, साल बिल्कुल पहले तो आप बिल्कुल। उसको खिलाते. 5 साल पहले तो वो मटेरियल था ना इंटरनेशनल क्रिकेट का. ताबिश खान भी 5 साल पहले मटेरियल था. आपके पास क्या बॉलिंग थी उसको? कोई बॉलिंग नहीं थी आपके पास. आप हसन अली को लाए, आपने फ़हीम अशरफ पे 2.5 साल स्पेंड कर दिए. ही डिडंट परफॉर्म अ सिंगल टाइम. एक भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस की नहीं आई. क्या हुआ? फिर ड्रॉप हो गया, फिर वापस आप उसको वापस टीम में ले आए. मतलब वो तो सरासर नजर आ रहे हैं ना कि आप फेवर कर रहे हो. तो अब आप यही, अगर इतने फेवरिज्म आप इनको कर रहे थे, फेवर आप इनको भी कर देते इन प्लेयर्स को. लेकिन बस जो सिस्टम में रहे, जो लाइकिंग डिसलाइकिंग पे डिपेंड करता है, तो वो फिर ऐसे ही होता है बात. बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है फिर, सो और भी क्वेश्चन मैं मेरे ज़हन से निकल गया था, मैं कुछ पूछने वाला था। अच्छा हाँ जी, आपने इंग्लैंड में कितनी क्रिकेट खेली? मैं आप कह रहे थे 3 साल खेली थी आपने वो डरहम में, वो नाम भूल गया, टी से जो शुरू हुआ, टाइम 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 आउट आउट था। क्रिकेट क्लब. उसके अलावा इंग्लैंड में कितनी क्रिकेट खेली आपने? I played in 2012 for Ainsdale Cricket Club in Lancashire. Liverpool Division 1, and I played first 3 years, 2001, 2, and 3, for Newcastle and Harshell Cricket Club in Staffordshire League. अच्छा अच्छा। Yeah, स्टैफर्डशायर लीग में खेला, लिवरपूल लीग में खेला, और वो डरहम में लीग खेला। exactly. Durham League. अच्छा, मतलब ज्यादा नॉर्दर्न इंग्लैंड में आपने खेला। Exactly, you can say like Midlands. You can say in the Midlands, Staffordshire and Liverpool. But if you go to the Durham side, Northeast Premier League, that was like in the north side. Like one of the best league I played in Northeast Premier League as an experienced spinner. हाँ जी, मतलब उधर तो मौसम काफी ठंड होता, कैसे मैनेज करते थे? बहुत ठंड, नॉर्थ इंग्लैंड में। बहुत ठंड, बहुत ठंड. हैदर बहुत ठंड थी. और जो हमारा ग्राउंड वो बिल्कुल कोस्टल एरिया के करीब था. इतनी ठंड होती थी कि मतलब जब आपको बॉडी अच्छा, वहां पर ना लिमिट्स थी, ओवर्स की लिमिट्स थी. लेकिन जहां मैं खेला हूँ, लिवरपूल में खेला हूँ, मैं स्टैफोर्डशायर खेला हूँ, तो वहां पर ओवर की लिमिट्स नहीं थी ना.
तो यहाँ पर हमको ना बड़े कैलकुलेटेड होके ओवर करना पड़ता था। 20 ओवर लिमिट थी कि 2-3 ओवर में आपको वार्म अप होना है, फिर अगले 5-6 ओवर में आपने विकेट लेनी है, फिर 2-3 ओवर करके फिर आपने रुकना है, फिर लास्ट में दोबारा बॉल करने आना है। तो वो बड़ा लिमिटेड था और बड़ा टफ था। जो ओपोनेंट्स हमारे साथ हमारे अगेंस्ट थे वो ऑस्ट्रेलियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, मार्कस नॉर्थ और ये आपका मार्क वुड खेला है आके अपना फिटनेस टेस्ट के लिए। स्टोक्स, बैन स्टोक खेला है, बैन स्टोक खेला है वहाँ फिटनेस टेस्ट के लिए। लियम प्लंकेट खेला है आपका। धर्म का जो फास्ट बॉलर पाकिस्तान जो इंग्लैंड का भी फास्ट बॉलर था, मेरे जहन में नहीं आ रहा नाम। He used to play over आजकल there. खेलता आजकल आजकल नहीं है। He used to play. He played Ashes series. Onions. Graham Onions, exactly. I played against him, and like he's one of the good experience of my cricket career. ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर बहुत शुक्रिया, सारे क्वेश्चंस मतलब आपने दे दिए जवाब, मजा आया। और मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा जब तैयार होगी। थैंक यू सो मच हैदर, और आपने इनवाइट किया इन योर शो, और आई रियली थैंक्स के लेकिन मैं आप सॉरी भी करूंगा क्योंकि बहुत जो आप टाइम दिए थे उस टाइम पे मैं नहीं आ सका ड्यू टू सम इलेक्ट्रिसिटी। कोई नहीं, मुझे मैं समझता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। वो तो मिडनाइट हो गया, अब तो आपको सोने का टाइम हो गया आपका। हाँ, क्योंकि मुझे असल में अर्ली मॉर्निंग कोचिंग पे जाना है, सो अंडर 13 बॉयज हैं, तो आई जस्ट नीड टू मेक अ प्लान, देन आई गो टू स्लीप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू हैदर, अल्लाह हाफिज।